Good morning, friends. Now, today I will take the first lecture on hydrostatic forces on the surfaces. So, this is my first lecture regarding to this topic. And before starting to this topic, first of all, I will just give you the idea that what is, you can say, that hydrostatic means hydrostatics. ये जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट, ये पहला लेक्चर है. सो हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, static means stationary, at rest. So this is mean hydrostatics meant the fluid or the water is at rest. Then if a surface is immersed in the water, whether it is a vertical plane, whether it is a inclined plane, or whether it is curved body, any plane is immersed in the water. So what happens? There must be some hydrostatic forces which are acting on the body, right? And here we have to find out the magnitude of those hydrostatic forces as well as the point where these hydrostatic forces are acting, right? So this is the main aim of this chapter, that what we have to find out. What we have to find out means we have to find out the hydrostatic force, means pressure, total pressure which is acting on the body, and the point at which this total pressure is acting. This is the theme of this topic, and then now we'll start first. So सबसे पहले, first of all, I will give you the definition of this. What is static fluid? Static fluid क्या है? What is static fluid? Right? Static fluid means the layers which are adjacent, or you can say the adjacent layer of the fluid, when there is no relative motion, between the adjacent layer of the fluid, or you can say to the neighboring layer of the fluid, when there is no relative motion, you can say that the fluid is at rest, right? तो पहला क्या है इसमें स्टैटिक फ्लूइड का? फर्स्ट यू कैन से, फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज no relative motion between the adjacent layers of the fluid. तो जो आपका फ्लूइड होगा उसमें जो लेयर्स हैं उसकी एक दूसरे के पास जो लेयर्स हैं उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, राइट? उनमें क्या होगा? रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वो स्टैटिक होंगी. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, यू कैन से क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 0. सो इन दिस केस वेलोसिटी ग्रेडियंट is 0. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? 0 होगा स्टैटिक फ्लूइड में. दैट इज du upon dy. दिस इज इक्वल टू 0. डेफिनेटली वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे 0 होगा? बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर. सो इट मींस योर du is 0 and dy is the distance between the two adjacent layer, राइट? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या डेफिनेशन होता है? Velocity gradient, this is equal to du upon dy, right? Relative motion or the relative velocity between the two adjacent layer, and that is divided by the distance between the two layers. So that is your the velocity gradient. And in this case, in case of the static fluid, your velocity gradient is 0. That is du upon dy is 0. This is the second point. And the third point here,
जब आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा when the fluid is not in motion. So when the fluid is not in motion means that the relative velocity between the two layers adjacent layer, that is zero. Your velocity gradient is zero, and when your velocity gradient is zero, so you can say that shear stress is zero. Shear stress is zero, right? तो इस केस में क्या होगा? shear stress is zero means shear stress क्या आपका mu into du upon dy, this is zero. तो du upon dy आपका जीरो है, तो इसमें shear stress भी जीरो होगा. So these are the three factors, are the conditions you can say when the fluid is at rest, right? अब आपको समझ आया when the fluid is at rest, what are the three conditions? The three condition is there is no relative motion between the adjacent layers of the fluid. First point is this. Second point is velocity gradient is zero, and you know the definition of the velocity gradient. Velocity gradient means the relative velocity between the two layers divided by the distance between the two layers. And if I say that the dy is the distance between the two adjacent layers, and du, that is the relative velocity, right, between the two layers. So if du upon dy, this is equal to zero, so it means that your velocity gradient is zero in case of this your static fluid. And the third one is shear stress is zero, that is mu into du upon dy is zero. This is the condition of the static fluid, right? Now we come to the main point, hydrostatic forces. Hydro means what? Hydro means fluid, liquid, water, right? Hydro means fluid, liquid or water. Static means stationary. So means when the fluid is stationary and when a body is immersed in the fluid, right? When a body is immersed in the fluid, that body is accompanied by the forces which are acting on the body. So here we have to calculate. Here we have to calculate the forces on the body. हमें क्या निकालना है? We have to calculate the force on the body, right? And you can say the magnitude of the force on the body we have to find out. And the second one we have to find out कि जो body जो आपने मस किया है, इसके ऊपर जो force होगी आपकी, वो किस point के ऊपर एक्ट करेगी. तो वो जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट के ऊपर जो आपकी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी, जो बॉडी आपने मस किया है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट? अब देखिए, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर. अब देखिए, ये हाइड्रोस्टैटिक जो आपका फोर्सेस का चैप्टर है, इट इज हैविंग टू पार्ट्स, राइट? So one part we have to calculate. We have to calculate a hydrostatic force on the plane surfaces, and the second part is hydrostatic force on the curved surfaces. So hydrostatic forces on the surface. तो आप कह सकते हैं ये आपका दो पार्ट में होगा, right? So one is hydrostatic force on plane surface and hydrostatic force on curved surface, right? तो ये वन बाय वन हम इनका वी विल कैलकुलेट. प्लेन सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, किस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालना है, और कर्व सरफेस के ऊपर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट. सो अब देखिए, अब जहां तक प्लेन सरफेस की बात है, वी विल आल्सो सम आइडिया अबाउट द प्लेन सरफेस.
ये जो जितना भी आपका ये यू कैन से योर वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल प्लेन, आर यू कैन से योर वर्टिकल प्लेन, your horizontal plane, your inclined plane. So these are called the plane surfaces, right? Vertical plane, तो ये क्या होगा आपका vertical plane, vertical plane, vertical plane, horizontal plane are inclined plane, right? ये आपका हो गया plane surface. And curved surface, you know, the surface it is just like a parabola, so that is the curved surface. ठीक, अब देखिए, we will start from this. अब देखिए इसमें vertical plane, horizontal plane and inclined plane. Normally what we do, we just take the inclined plane and on the inclined plane we just calculate the hydrostatic force, and then we put the value of theta, because you know that in inclined plane theta, in the inclined plane there is some angle, you can say that angle is theta. What in vertical plane your theta is 90 degree, what in horizontal plane theta is 0 degree, and whatever the formula you will get in the inclined plane when I will drive the equation of the hydrostatic force on the inclined plane. Whatever you are having the formula of that, you have to calculate, you have to substitute the value of theta. If there is an inclined plane, the theta should be 90 degree, you will substitute and you will get the value of the hydrostatic force of vertical plane. And if your horizontal plane is there, you substitute theta as 0 degree, right? But I will just calculate I will take each and every plane and calculate the value of the hydrostatic force on each and every plane. So first of all, I will start from the vertical plane, right? Hydrostatic forces on the vertical plane. अब देखिए इसको करने से पहले फर्स्ट आई विल गिव यू सम आइडिया आल्सो. फर्स्ट ये एक आपको डेफिनेशन देंगे. टोटल pressure or hydrostatic force. So it is defined as the total pressure or the hydrostatic force is acting on the body or is acting on the surface of the body when the particle body is immersed in the liquid, right? So that total pressure which is acting on the body, that total pressure is called the hydrostatic force. You understand this point? So you can say, just see here, ये आपका this is your free surface of water. Free surface of water, right? So let us say, I will start from here. Let us say an inclined plane. This is your, you can say this is your ball.
ये आपका मैं बॉल ले लेता हूं. दिस बॉल हैज नो यूज. दिस इज योर बॉल, राइट? And this is your inclined plane. This is your inclined plane. Right? This is your inclined plane. तो ये एक बॉडी है. दिस इज मास रेडियस, राइट? अब देखिए, दिस इज, इसको मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा. डेरिवेशंस के ऊपर बाद में आता हूं. थोड़ा सा आई वांट टू एक्सप्लेन इट. देखिए, दिस बॉडी इज immersed in the liquid. This is the liquid, a fluid you can say. This is the free surface. This is your, you can say this is top is the free surface of the liquid. This is just a ball. With this, you can say that the inclined gate is attached with this ball, right? Now, just see here. Suppose if I say that this height is h. That is the h is the depth of the body from the free surface of the fluid. So h क्या है? Depth of the body from the free surface of the fluid, right? अब एक चीज देखिए आप, अगर मैं इसका फ्लूइड डायग्राम बनाता हूं, राइट? इफ आई विल फाइंड आउट द फ्लूइड डायग्राम ऑफ द बॉडी, तो जस्ट सी हियर. So this is your so this is the pressure forces. This is acting perpendicular to this, then this, अगर आप इसको ड्रा करें, डी जस्ट लाइक दिस. ये इसका फ्लूइड डायग्राम होगा. कैन से दिस इज द फ्लूइड डायग्राम, राइट? तो ये आपकी फोर्सेस है जो इसके एक्ट करती हैं, राइट? सपोज इफ आई से दिस इज द CG. This point is your CG, right? This point is your CG, right? So one thing you have seen here, the point which is nearer to the free surface, just try to understand it. The point which is nearer to the free surface is having the minimum pressure force acting on the body. And the point which is far away from the free surface, you have this pressure forces, maximum pressure force is acting on this, right? So अगर मैं, ये आपका CG है, this point you can say you have C, right? अगर मैं आपका वर्टिकल बॉडी लेता हूं, तो वर्टिकल बॉडी में भी क्या होगा? ये आपका वर्टिकल बॉडी है. सपोज this is your free surface of the water. This is your surface of the water. मैं इसका भी फ्लूइड प्रेशर डायग्राम ड्रा करता हूं. सपोज दिस इज योर बॉल. इसके साथ एक वर्टिकल गेट जो है अटैच है. के साथ आपका वर्टिकल गेट, ये वर्टिकल गेट अटैच, राइट? दिस इज द वर्टिकल प्लेन. दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन. राइट? इसमें भी अगर आप, यू कैन से दिस इज योर CG.
दिस इज योर CG, और जो CG से ये वाली जो लेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड द H बार, ये याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द H, राइट। और फ्रॉम हियर टू हियर, this is called the H, right? This is from here to here, this is called the H. So in this case also, you will find one thing here, the point which is nearer to this, the point which is near to the free surface, it is having the minimum force, and the point which is away from the free surface, that is having the maximum force. Now you will ask me one thing, that how you are saying that it is having the minimum force and it is having the maximum force. This you can only understand when I will give you the equation of the force, right? When I will give you the equation of the force, when I will try the equation of the force. So I think before this is, मैं आपको ये बताया था कि जब भी आपका इमर्स बॉडी, जो आपका इमर्स बॉडी है, जब भी बॉडी आप इमर्स करेंगे फ्री सरफेस में, तो जो उसका नियरर एंड होगा बॉडी का, जो उसका नियरर एंड होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस, दैट इज हैविंग द मिनिमम फोर्स, एंड द एंड which is away from the free surface, that is having the maximum force, right? तो इसका भी जो, अगर मैं डायग्राम इसकी भी ड्रा करता हूं आपको, ठीक है, तो इसकी भी जो डायग्राम ड्रा होगी, जो आपका ये पास वाला एंड है और जो दूर वाला एंड है, राइट? तो इसमें इसकी डायग्राम जो ड्रा होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये पास वाला है, ये फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, just like this. This is the fluid diagram, right? अब देखिए, ये चीजें, फोर्स तो आपको पता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, दिस यू हैव सीन this thing, that the force is acting on the body, right? And but we have to find out that where the force is acting on the body. ये मेरा जो बताने का आपको फंक्शन था, ये था कि फोर्स तो आपको पता है कि बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी व्हेन द बॉडी इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड और द लिक्विड, राइट? प्रेशर फोर्सेस जो होंगी वो उस पर एक्ट करेंगी, राइट? अब ये जो प्रेशर फोर्सेस हैं, किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट के ऊपर प्रेशर फोर्सेस एक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। ये जो मैं आपको फ्लूइड डायग्राम, जब प्रेशर डायग्राम मैं जो आपको बता रहा हूं, फ्लूइड प्रेशर डायग्राम्स जो आपको बताना का मेरा पर्पस ये था, क्योंकि ये वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि जो भी बॉडी आप इमर्स करेंगे उसका एक सीजी होगा, उस बॉडी का क्या होगा? सीजी होगा। जैसे इसका ये जो वर्टिकल प्लेन है, इसका सीजी ये पॉइंट था, दिस इज द सीजी। इसका सीजी जो इंक्लाइन प्लेन है ये है। इसी तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन लेता हूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन लेता हूं, इफ आई विल टेक द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन लेता हूं मैं, सपोज दिस इज योर फ्री बॉल, राइट? सो दिस इज योर फ्री बॉल and this is your horizontal plane, right? This is your horizontal plane with a free ball, horizontal plane. Right? This is your horizontal plane. तो इसमें आप देखेंगे ये आपका फ्री बॉल है, दिस इज फ्री बॉल, having this, and the horizontal gate आप कह सकते हैं, this is attached with this ball or any. So it's CG here.
it's CG here, right? This point के ऊपर इसका CG है। आप देखिए इसका जो डेप्थ होगा हॉरिजॉन्टल का, अगर हम डेप्थ की बात करें, सपोज दिस इज योर डेप्थ, दिस इज योर डेप्थ इन दिस केस, दिस इज योर डेप्थ, राइट? तो ये क्या हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें देखिए ये पूरे का पूरा जो प्लेन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसलिए इसमें क्या होगा, जो भी फोर्सेस होंगी इसके ऊपर एक्ट करेंगी, बिकॉज इसका डिस्टेंस जो पूरा कंप्लीट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड क्या है, इक्वल है। तो इसमें जो अगर हम इसकी प्रेशर डायग्राम बनाते हैं, इसकी हम प्रेशर डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें जस्ट देखिए आप वन थिंग, ये आपका एक प्रेशर डायग्राम है, ये प्रेशर डायग्राम, दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर प्रेशर डायग्राम। तो इसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? तो ये आपका सेंटर पॉइंट था, दिस इज योर सेंटर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड CG, दिस इज कॉल्ड CG, दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट, राइट? अब देखिए ये मैंने प्रेशर डायग्राम्स तीनों पर ड्रा किया है। अब इसका पर्पस क्या है ड्रा करने का, क्योंकि मैं अभी फोर्स का डेरिवेशंस तो नहीं किया, मैंने कहा कि इसमें फोर्सेस एक्ट करती हैं। अब फोर्सेस तो एक्ट करती हैं, जब भी कोई बॉडी जो है आप एक इमर्स करेंगे किसी लिक्विड में, फ्लूइड में, तो उसमें फोर्सेस आपकी एक्ट करती हैं। मैंने आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दिया कि अगर 3 डिफरेंट टाइप की बॉडीज हैं, सपोज इंक्लाइन प्लेन है, उसमें जो फोर्सेस जो होंगी वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, जो आपका वर्टिकल प्लेन है उसमें फोर्सेस किस तरीके से एक्ट करेंगी, और जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें फोर्सेस आपकी किस तरीके से एक्ट करेंगी, राइट? जहां तक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखिए फोर्सेस एक्ट करनी, मैं फिर इस पॉइंट के ऊपर आता हूं। सपोज इफ आई से ये CG वाला, मैं CG से लेके जहां तक, इफ आई से दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट? और इधर से अगर मैं इधर से इसको ऐसे लेता हूं तो दिस इज योर सेकंड पार्ट, राइट? पहले आप इसी में कंसंट्रेट करेंगे, हम इससे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दिस पॉइंट इज योर CG, this point is your CG, and this I have just assumed that there are 2 parts, one part towards the left of the CG and the second part is towards the right of the CG, right? If you will see here, you will find out that the part which is toward the right of a CG, they are having the minimum forces. They are having the minimum forces. Why? Because this part is nearer to the free surface of the water. You understand this point? Because this surface is nearer to the free surface of the water. So if I have drawn the pressure diagram of this, so here you will see that this part is having the minimum forces, or you can say the magnitude of the forces are minimum as compared to this. ये जो आपका सेकंड पार्ट है, यू कैन से द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, जो आपका सेकंड पार्ट था, here you will see because this part is away from the free surface of the liquid because it is inclined like this. It is inclined like this. This is the free surface. So free surface पे ये जो J वाला पार्ट है, this is the nearer. तो जहां पे मिनिमम फोर्सेस है, और J वाला पार्ट जो है, this part is away from this. तो जहां पे क्या है, मैक्सिमम फोर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर मींस वेयर योर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट, वेयर योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट, और यू कैन से वेयर योर दिस प्रेशर फोर्स विल एक्ट। दैट फोर्स मुझे बताइए, अगर इफ दिस पार्ट इज हैविंग द फोर्सेस मैक्सिमम एंड दिस पार्ट इज हैविंग द फोर्सेस मिनिमम, सो इट मींस दैट सेंटर ऑफ प्रेशर, मुझे बताइए सेंटर ऑफ प्रेशर इस साइड CG के इस साइड एक्ट करेगा या CG के इस साइड एक्ट करेगा?
सेंट्रल प्रेशर कहां पे एक्ट करेगा? सेंट्रल प्रेशर सीजी के उस साइड के ऊपर एक्ट करेगा जिस साइड के ऊपर फोर्सेस आपकी क्या है, मैक्सिमम है। तो आप कह सकते हैं सेंट्रल प्रेशर अगर आपका सीजी जे था, दिस इज योर सीजी, तो सेंट्रल प्रेशर आपका ये आपका हुआ पी। दिस इज द सेंट्रल प्रेशर वेयर योर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। तो जो सेंट्रल प्रेशर से हम करते हैं तो क्या लेते हैं इसका, सेंट्रल प्रेशर से जो डिस्टेंस होता है दिस इज वी टेक एच डैश, है ना। यू में एच स्टार है, मैं एच डैश लूंगा। एच क्या लेते हैं, एच डैश, राइट। अब देखिए, अब आ जाइए इसमें वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन में भी ये आपका पॉइंट सीजी है, तो मैं इसको भी आपको ये दो पार्ट्स में इसको क्या करता हूं, डिवाइड कर लेता हूं टू पार्ट्स में। दिस इज योर, यू कैन से टॉप पार्ट and this is your bottom part। अब इसको अगर हम विजुअलाइज करेंगे, इसको अगर हम देखें तो आप देखेंगे ये जो आपका टॉप पार्ट होगा, दिस पार्ट इज हैविंग द मिनिमम फोर्स एंड दिस पार्ट इज हैविंग द मैक्सिमम फोर्स। रीजन इज दैट दिस पार्ट मीन्स द पार्ट फ्रॉम दिस सीजी, फ्रॉम द सीजी, this part is nearer to the free surface of the water, whereas this part, from this to this part, that is the bottom part, this is away from the, or having the more distance from the free surface of the water, right? So you can say here maximum cluster of forces are acting here. So maximum forces are the, or you can say the magnitude of the force is maximum at this part, means below the CG, and magnitude of the forces above the CG is less. So here you can say आपका जो सेंट्रल प्रेशर होगा, आई विल से दिस इज योर सेंट्रल प्रेशर P। तो जो सेंट्रल प्रेशर होगा ये क्या होगा आपका, बिलो टू सीजी होगा। सीजी से क्या होगा, नीचे होगा, राइट। इन केस ऑफ, तो दोनों केसेस में आपने ये देखिए क्या एक चीज देखी, क्योंकि जो जहां तक जो डिस्टेंस होता है टू एच वार, सीजी से लेके फ्री सरफेस तक जो डिस्टेंस है इसे हम किससे डोनेट करते हैं, एच वार से। और ये जहां से लेके जहां तक जो पॉइंट ऑफ प्रेशर जो डिस्टेंस होगा, इसको हम कहां से डिनोट करते हैं, इसको हम डोनेट करते हैं एच डैश, राइट। तो इस केस में भी देखा कि एच डैश ग्रेटर देन एच बार। इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन H dash means the point where the hydrostatic force will act, or you can say the center of pressure. So you can say that center of pressure is greater than, in case of H dash or H dash, this is greater than H bar in case of vertical plane. Here also H dash greater than H bar in case of inclined plane. Now you come to this point, horizontal plane. तो horizontal plane को भी मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो here you will say this is left part and the second part. But here you also say, you will see one thing, that both these parts are having the equal forces. Both these parts are having the equal forces because it is flat, it is horizontal. And this part is having the equal distance from the free surface of the water, right? So इस केस में आप कह सकते हैं जो आपका H बार होगा, इस केस में जो आपका H बार होगा ये आपका H डैश होगा। मीन्स सेंटर ऑफ द पॉइंट इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट विल एक्ट ऑन द CG ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो सेंट्रल पॉइंट होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में वो कहां पे एक्ट करेगा, जो बॉडी का सीजी होगा उसी के ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर का पॉइंट एक्ट करेगा इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वेयर एज इन केस ऑफ द वर्टिकल प्लेन, इन केस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, योर सेंटर ऑफ प्रेशर इज बिलो देन द एच बार, राइट, बिलो देन द एच बार। तो हेंस वी कैन से, हम कह सकते हैं हेंस, ये लिख लीजिए, दिस इज
very important point. In inclined plane, right? In inclined plane, H dash greater than HUR. समझाया? H dash क्या है? ये लिख देता हूं मैं. H dash है आपका distance of center of pressure from free surface. राइट? और HUR मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस ऑफ CG, डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द प्लेन फ्रॉम द फ्री सरफेस. ठीक है ना? तो HUR आपका ये था. तो इस केस में देखा H डैश ग्रेटर देन HUR. अगर मैं सेम आपका क्या होगा इन वर्टिकल प्लेन में भी यही कंडीशन थी आपकी, ये मैंने अभी प्रूव किया. राइट? अभी आपको बताया दैट इज H डैश ग्रेटर देन HUR. राइट? वो जो आपका हॉरिजॉन्टल केस होगा, सो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका जो H dash this is equal to HUR. So this is very important point, you must remember this. ये जो मैंने फ्लूइड डायग्राम्स ड्रा किया, आपको प्रेशर डायग्राम जो फ्लूइड का ड्रा किया, उससे मैंने ये आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश की कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो कहां पे एक्ट करेगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे एक्ट करेगा, एंड वेयर एज हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे एक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द CG ऑफ द प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू द CG of the plane. So this is right. So this is, I think this is very much clear to you. Now we will just try the equation of the force. अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को ड्राइव करेंगे. तो फर्स्ट केस लेते हैं. जो फर्स्ट केस है आपका वर्टिकल प्लेन, submerged in a, ठीक है. जब वर्टिकल प्लेन आपका लिक्विड में सबमर्ज होगा तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना है. देखिए ये मैं
vertical plane, you can say arbitrary shape. I have taken a vertical plane of the arbitrary shape, right? That is immersed in the liquid, right? That is immersed in the liquid. You can say this is the free surface of the water, and this is the CD of the arbitrary plane, vertical plane, or you can say. So मैंने आपको बोला जो distance of the CD from free surface, distance of the CD of the plane which is immersed in the water, this distance is equal to HOR, right? So we have to find out the force. What we have to find out? We have to find the hydrostatic force F acting on the body, right? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमें फाइंड आउट करना है जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। ये मैंने डायग्राम इसका ड्रा किया है, एंड नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन नाउ कि इसमें ये मैंने स्ट्रिप लिया है, ये मैंने क्यों लिया है, किस लिए मैंने ये स्ट्रिप जहां पे ज्यूम किया है। तो फर्स्ट आई विल जस्ट स्टार्ट द थिंग्स। अब देखिए, जैसे आपको पता है कोई भी फोर्स जो है F, ये आपका होता है प्रेशर इनटू एरिया, राइट? क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। बट द प्रॉब्लम इज, मैं तो डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकता था। आई कैन यूज इट डायरेक्टली, प्रेशर इनटू एरिया करके मैं फोर्स निकाल लेता। अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आएगा कि मैंने व्हाई आई डिड नॉट यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज इफ आई नो द एरिया ऑफ द बॉडी, तो प्रेशर की वैल्यू जो है दिस इज हमारे पास है, दैट इज रो जी एच, राइट? सो व्हाई आई डिड नॉट यूज दिस फॉर्मूला? व्हाई आई डिड नॉट यूज दिस फॉर्मूला? रीजन इज, जैसे मैंने अभी आपको प्रेशर डायग्राम्स मैंने आपको ड्रा किया, बताया मैंने, one thing you have seen there that the pressure is not constant which is acting on the body. जब भी कोई बॉडी हम इमर्स करेंगे तो उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो आपका क्या होगा? वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। दैट प्रेशर विल वेरी। सपोज मैं कहता हूं ये आपका एक पॉइंट है A, ये पॉइंट आपका B है, एंड दिस पॉइंट इज C। तो मुझे बताइए जो प्रेशर होगा एट पॉइंट A सेम होगा, प्रेशर B क्या सेम होगा, क्या प्रेशर C क्या सेम होगा? नहीं, क्योंकि दिस पॉइंट A, दिस इज फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। इसका जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस ऑफ वाटर से पॉइंट B से मैं कंपेयर करूं तो इसका डिस्टेंस क्या है, या इसकी डेप्थ क्या है? ज्यादा है। तो जब इसकी डेप्थ ज्यादा होगी तो क्या होगा? इस पर जो प्रेशर एक्ट करेगा इस पॉइंट के ऊपर, दिस प्रेशर इज मोर। जो इधर पॉइंट एक्ट करेगा प्रेशर, दिस पॉइंट इज लेस देन दिस, बट दिस प्रेशर इज मोर देन दिस पॉइंट C. So you can say that pressure is not constant here. So when the pressure is not constant here, so we cannot use this formula directly. हम इस फार्मूला को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वी विल नॉट यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिवाइडेड दिस आर्बिट्रेरी बॉडी इनटू स्मॉल स्टेप्स, राइट? हम स्मॉल स्टेप्स में इस बॉडी को क्या करते हैं, इसको मैंने इसको डिवाइड किया है। तो आई हैव टेकन दिस वन स्टेप, लाइकवाइज होल ऑफ द बॉडी is divided by the steps. तो मैं इस बॉडी के ऊपर अज्यूम करूंगा, राइट? इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, और इस बॉडी के ऊपर जब मैं आई विल कैलकुलेट द फोर्स एंड देन summation of the force I will take up, integration of the force I will take up, ठीक है? So summation of the force that will give you the total value of the force or the total value
of the magnitude of the force which is acting on the this plane, right? समझ आया ये पॉइंट आपको? तो देखिए, सो कंसिडर, इसमें मैंने क्या किया, सो आई हैव जस्ट डिवाइडेड दिस बॉडी इनटू स्मॉल स्टेट. सो मैं कह सकता हूं लेट B is the width of stick, right? DH is the thickness of stick, right? And this body is having the depth from the free surface of the water. This is H. So you can say H is the depth, or not depth, you can say distance of the strip from the free surface of water, right? So HOR क्या होगा इसमें? HOR distance of the CG, distance of the CG of the vertical plane, or you can say this arbitrary body, from the free surface, and rho is the density of the fluid or water, जो भी आपने दिया है. So rho is the density of the fluid. Right? So these are the things which you require. B is the width of the strip, DH is the thickness of the strip, H is the distance of the strip from the surface of the water, HOR distance of the CG of the vertical plane from the free surface, and rho is this, right? Now, what is force here? Force on the strip. Force acting on the strip क्या होगा? Not force, you can say total pressure force, you can say. So pressure force acting on the strip intensity on the stick. Pressure intensity on the stick, this is equal to, yes. तो कितना प्रेशर इसके ऊपर होगा, स्ट्रिप के ऊपर? रो इंटू जी इंटू एच, राइट? रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी इज द फोर्स ग्रेविटी, जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स जो है, एंड एच इज द डेप्थ फ्रॉम दिस स्पेस, राइट? So pressure intensity on the strip is rho into G into H. So force or you can say total pressure force on
स्टेप, क्या आएगा इसका? प्रेशर इनटू एरिया। तो ये आपका कह सकते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं, इफ डी ए इज द एरिया ऑफ द स्मॉल, डी ए इज द एरिया ऑफ द स्मॉल स्टेप, तो ये क्या आएगा आपका? रो इंटू जी टू एच इंटू डी ए। दिस इज क्लियर? दिस इज द प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप, एक स्ट्रिप के ऊपर। अब देखिए, जो स्ट्रिप का एरिया था, मैंने कहा विड्थ इसका क्या है? बी इसका विड्थ है, थिकनेस इसका डीएच है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच इंटू बी इंटू डी एच, राइट? सो दिस इज द प्रेशर फोर्स, दिस इज द प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप, रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच। सो दिस इज फॉर क्या है? दिस इज फॉर वन स्ट्रिप, दिस इज फॉर वन स्ट्रिप कि एक स्ट्रिप के ऊपर दिस इज द टोटल प्रेशर फोर्स विच इज एक्टिंग हियर। बट we have divided this arbitrary body into number of steps, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए what we will do, we will just integrate this। तो आप कह सकते हो टोटल फोर्स ऑन द, इसको मैं थोड़ा निकाल लेता हूं, ठीक है? टोटल प्रेशर फोर्स और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द वर्टिकल बॉडी, और वर्टिकल प्लेन लीजिए, ऑन वर्टिकल प्लेन। कैसे निकालेंगे? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट? सो एफ, ये आपका क्या था? दिस इज योर डी एफ, ये क्या था आपका? डी एफ था। तो इसको इंटीग्रेट करो, इसका टोटल एरिया क्या है? ए इज द टोटल एरिया ऑफ दिस आर्बिट्ररी बॉडी, तो फ्रॉम ए, सो डी एफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए रो इंटू जी इंटू एच इंटू वी इंटू डी एच, राइट? So therefore F, this is equal to rho G, rho N G, वायर आ गया आपका A, जी आपका B इंटू डी एच क्या है? व्हाट इज B इंटू डी एच? B इज द विड्थ एंड डी एच इज द थिकनेस। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? H into dA। Is there any problem? Because B into dH, this is equal to dA, right? This is clear? Up to this is clear, right? आगे देखिए, सो ये क्या है आपका? HDA। व्हाट इज HDA? H is the depth of this, dA is the area of this small strip. So you can say this is movement of surface
moment of surface area about the free surface of the liquid, and this is the, I will take I naught. This is equal to I naught, right? So therefore F is equal to rho into G into I naught. Rho into G into I naught. This is clear? Up to this point, this is clear? Rho into G into I naught. Sorry. This is wrong. Movement of surface area above the free surface. Movement of the surface area above the free surface of the liquid. And this is free surface of the liquid. And this is equal to this is equal to so you can say H into dA this is equal to area of the surface into HUR. This is equal to area of the surface into distance of the CG from the free space. That is equal to area of the surface into, this is area of the surface, area of the surface into H क्या distance of CG. ये तो H था A का, H मैंने क्या लिया था A का लिया। तो जब ये सारी स्ट्रिप्स को मैंने इंटीग्रेट किया तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा H की जगह क्या होगा H बार होगा। अगर मैं जब पूरा होल इसका लेता हूं, अगर मैं इसका होल इसका लेता हूं आर्बिट्री जो आपका वर्टिकल प्लेन है, तो जो स्ट्रिप का जो डिस्टेंस था फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर दिस इज H. बट इफ आई विल टेक होल ऑफ द स्ट्रिप्स लाइक दिस like this, that is for whole of the body. When I take the strip, so then I will take the HUR, right? Distance of the CG from the free surface. So this is equal to integration of H into dA. This is equal to A. A is the area of this arbitrary shape of vertical plane, and HUR is the distance of the CG from the free surface of the liquid, right? So therefore, the force, the magnitude of the force F is equal to rho into G into A into HUR. Right? So this is the magnitude of the force which is acting on the vertical plane. Same magnitude of the force will be on the inclined plane, and the same magnitude of the force will be on the horizontal plane. Reason is, here you will say that the rho क्या है fluid. जो fluid की density है this is constant. जो G होगा आपका ये भी कांस्टेंट रहेगा, जो एरिया है ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, राइट? और जो HUR है दिस विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. तो जहां भी आप एक चीज देखेंगे, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इसमें कहीं कोई एंगल आपके इन्वॉल्व नहीं है.
जहां पे क्या है, कोई एंगल आपका इन्वॉल्व नहीं है। और जब आपका एंगल कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, थीटा की कोई वैल्यू नहीं है इस केस में, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो आप इसका इक्वेशंस देखेंगे, दिस इज रो जी ए एच बार, सो दिस इक्वेशन यू कैन से फॉर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज फॉर same for the inclined plane, this is same for the horizontal plane, and this is same for the vertical plane. I think you understand this. ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का था, मैं इसको एक दफा फिर बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है इसको करूंगा मैं। देखिए क्या किया, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने एक वर्टिकल प्लेन जो था इसको मैंने इसके बीच में इमर्स कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है कि इस जो प्लेन के ऊपर जिसको हमने लिक्विड में इमर्स किया है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या एक्ट करेगा, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, जो फोर्सेज होंगी उनका क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। अब जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिया, मैंने क्या किया कि इसमें एक स्मॉल स्टेप लिया, आई हैव टेकन द स्मॉल स्टेप एंड इट्स रीजन आई हैव जस्ट गिवन यू। द रीजन इज बिकॉज द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, pressure is non-constant, the surface which is nearer to the free surface, that is having the less pressure, whereas the surface which is further from the free surface of the water, that is having the more pressure. So you can say that in this case pressure is not constant, so we cannot use the formula force is equal to pressure into area. We cannot take this formula, we cannot use this formula. So what we have done, we have just divided this body into a small steps. And let's say that dA is the area of the small strip. तो हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल स्ट्रिप होगा इसके ऊपर हम प्रेशर फोर्स को निकालेंगे, और फिर क्योंकि ये बॉडी जो है दिस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्ट्रिप, तो क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे फॉर होल ऑफ द एरिया। तो इंटीग्रेट करने के बाद सिर्फ आपको ये स्टेप याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू डी ए। तो ये क्या है, h इंटू डी ए, देखो डी ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टेप, डी ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टेप। तो h क्या है, h इज द डिस्टेंस, तो जब ये एरिया डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, मूवमेंट होगा इसमें, राइट, इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, राइट, dA is this is like this, so h into dA you can say movement of surface area, movement किसका, surface area का above the free surface of the liquid, and this is equal to ये किसके बराबर होता है, area of the surface, this is the area of the surface into distance of the CG from the free surface, distance of the CG from the free surface, because this is in the integration. So here I am just taking h var, I am taking h var, and I am just taking the whole area of this arbitrary body. So मैं ये जो h var निकाला मैंने, ये मैंने पूरी बॉडी के लिए निकाला, इसमें आपको कंफ्यूज होने का पॉइंट नहीं है। ये आपका h था, तो आपने h var कैसे ले लिया, ये h मेरा जो डेप्थ थी, ये डेप्थ थी इसकी, ये जो मैंने एक स्ट्रिप लिया था, एक स्मॉल स्ट्रिप लिया था, जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू डी ए करूंगा, इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू डी ए मीन्स आई एम जस्ट टेकिंग होल ऑफ द बॉडी, आई एम टेकिंग होल ऑफ द बॉडी, एंड h बार इज द डिस्टेंस ऑफ द CG of the body from the free surface of the liquid. So I have taken h bar here. इसलिए मैंने जहां पे h bar लिया, h into dA is equal to a into h bar, और इसकी जगह j सब्स्टिट्यूट कर लो, तो j आपका फोर्स का फार्मूला आया, F is equal to rho into g into a into h bar. एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया इसमें, so one very important point is that this force will remain same, or you can say the magnitude of the force will remain same, the formula will remain same in case of the inclined plane, in case of the horizontal plane, in case of the vertical plane. Only the value of the force will vary with respect to h bar. अगर किसी का बॉडी का h bar ज्यादा है तो फोर्स उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर वैल्यू कम है तो फोर्स उसकी क्या होगी, कम होगी। मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा,
लेकिन जो फार्मूला है वो आपका सेम रहेगा, बिकॉज रो इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, area of the body is constant, only the difference is that the depth of the CG from the free surface of the body, right? So there is no theta, there is no angle, there is nothing like that. So you can say that this formula of total force or hydrostatic force, this is same for all of the planes, whether it is vertical plane, whether it is inclined plane, whether it is horizontal plane, right? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, फोर्स तो आपने निकाल लिया है राइट। अब फोर्स तो अपने मैग्नीट्यूड इसका निकाला, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये फोर्स जो है, ये जो आर्बिट्री बॉडी है, ये किस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी, राइट, कहां पे एक्ट करेगी। तो मैंने जैसे आपको भी इससे पहले एक्सप्लेन किया था, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा इन केस ऑफ द वर्टिकल प्लेन, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन, दैट इज बिलो द सीजी, किससे क्या नीचे होगा, जो सेंट्राइड होगा इस बॉडी का, जो वर्टिकल प्लेन का जो सेंट्राइड होगा उससे नीचे जाया करेगा। सपोज मैं कहता हूं कि ये जो आपका दिस पॉइंट है, मैं कहता हूं दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट पी, है ना। तो ये जो पॉइंट पी है ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है, और इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फ्री सरफेस रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एट होता है, ठीक। तो हमें ये P की वैल्यू निकालनी है कि P की वैल्यू हम कहां पे एक्ट करेगी, कहां पे वो पॉइंट होगा। इतना हमें मालूम है कि पॉइंट जो है इससे होगा सीजी से बिलो होगा इन केस ऑफ वर्टिकल प्लेन, इन केस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, राइट। बट कहां पे होगा दिस वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर, तो मैं इसको लिखता हूं सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर P, वी हैव टू फाइंड आउट। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर है आपका, वो हम निकालेंगे, क्या करेंगे, आपने वाई यूजिंग द प्रिंसिपल, by using the principle of movements। देखिए प्रिंसिपल मूवमेंट्स क्या था, प्रिंसिपल मूवमेंट्स था कि इफ रिजल्टेंट फोर्स जो आपका है, रिजल्टेंट फोर्स अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स F इज एक्टिंग on the axis, resultant force F is acting on the axis of any body, right? So that resultant force F is equal to the components of forces acting on the same axis, right? So by using the principle of movements, हम जब ये प्रिंसिपल मूवमेंट यूज करेंगे तो इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या था कि जो रिजल्टेंट फोर्स F है, अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, एक्सिस के ऊपर एक्ट करता है, रिजल्टेंट फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द एक्सिस, you can say this is a movements of a resultant force. Sorry, yes, fine, to Bangalore. This is movement
certain force on the axis of the body is equal to moments of the components of the forces on the same axis। तो इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के ऊपर हम जो है क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो हमें दिया है इसके ऊपर हम सेंटर ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब देखिए मूवमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन द सेम एक्सिस, तो आपका ये सेम शेप बॉडी मैंने यही लिया, सेम लिया है, इसी के ऊपर मैंने सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो व्हाट आई हैव टेकन, I have taken there is a small strip, or you can say this body is divided into small strips। तो जो स्ट्रिप का एरिया है ये भी आपको पता है क्या है, DA है, DA is the area of the strip and A is the area of the whole body, राइट। तो इसमें जो फोर्स निकाली थी हमने, फोर्स जो निकाली थी DF, ये अभी मैंने निकाला इसमें, DF क्या था आपका, रो इंटू G इंटू H इंटू DA, यही फोर्स निकाला था ना हमने, फोर्स ऑफ द स्ट्रिप। एक स्ट्रिप जो हमने जो लिया है जिसका एरिया DA है, द फोर्स ऑन द स्ट्रिप दिस इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू H इंटू DA। तो मैं ये भी इसको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू H इंटू B इंटू DH, राइट, विड्थ इंटू थिकनेस, राइट। तो ये हो गया आपका फोर्स। अब मूवमेंट क्या होगा इसका, मूवमेंट ऑफ द फोर्स ऑन द स्मॉल स्ट्रिप, मूवमेंट ऑफ द फोर्स ऑन द स्मॉल स्ट्रिप, ये किसके बराबर होता है, दिस इज, ये आपको पता है, दिस इज इक्वल टू DF इनटू from the free surface of the liquid, ये लिख लो, from the free surface, from the free surface of the liquid, right, DF। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से इसका डिस्टेंस कितना था, H, so you can say DF into H, कोई प्रॉब्लम, this is DF into H, right। Or you can say, so the movement क्या आएगा इसका, this is equal to DF की वैल्यू आपकी है रो इंटू G इंटू H इंटू V इंटू DH इंटू H, राइट, दिस इज क्लियर। और you can say, G आपका आया फॉर वन स्टेप, तो हमें क्या करना है, मूवमेंट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, movements of all the components of the forces। so movement of all the component of the forces क्या होगा, ये था, ये स्ट्रिप थी, स्ट्रिप के ऊपर एक फोर्स, मतलब वन फोर्स is acting on one strip only। तो if this body is comprised of the different strips, so movement of all the forces क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये आपका आएगा इंटीग्रेशन, so this is equal to इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू G इंटू B इंटू H स्क्वायर इंटू DH, राइट, रो G B H स्क्वायर इंटू DH, राइट। और दिस इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, रो और G बाहर ले लें, कोई फर्क पड़ा, रो एंड G, सो दिस इज H स्क्वायर इंटू DA, बिकॉज B इंटू DH, B इंटू DH क्या था, ये मैंने किया ना, B मीन्स विड्थ ऑफ द स्ट्रिप एंड DH इज द थिकनेस, एंड दिस इज इक्वल टू DA।
तो आई कैन राइट इट लाइक दिस एच स्क्वायर डी ए। अब देखिए व्हाट इज दिस एच स्क्वायर डी ए, राइट? सो एच स्क्वायर डी ए आई विल टेक द inertia on the axis, x-axis, right? Inertia of the surface on the axis. So this is the h square dA, इधर लिख लेते हैं। So h square dA, this is equal to I naught. This is inertia of the surface inertia of the surface of the area of the surface, inertia of the area of surface about free axis, right? And this is equal to I naught. ये h के dA किसके बराबर आया? I naught के बराबर। So you can say and now you take ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है ना? ये आ गया रो जी, दिस इज रो जी इंटू आई नॉट, राइट? सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ let F is the resultant force, let F is the, you can say, total force acting at the center of pressure, यही ना? टोटल फोर्स कहां पे एक्ट करती है? सेंटर ऑफ प्रेशर। और सेंटर ऑफ प्रेशर का जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है हम फ्री सरफेस से क्या लेते हैं? एच डैश। दैट इज एट डिस्टेंस h dash from the free surface of water, free surface of water। तो मूवमेंट क्या होगा इसका? मूवमेंट क्या होगा? F into h dash। मूवमेंट क्या होगा इसका? F into h dash। दिस इज द मूवमेंट। F इंटू एच डैश, ये होगा इसका मूवमेंट। अब मैंने आपको कहा था, जो ऊपर से अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी है तो उसमें क्या मैंने कहा था कि मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स which is acting on the axis or which is acting on the free surface of the water, this is equal to the movements of the components which are acting on the same axis or you can say free surface of water। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस, मैंने ये निकाला रो जी आई नॉट, ये मैंने जो कैलकुलेशन किया, दिस इज इन द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इन द इक्वेशन नंबर 2। तो सो आई कैन से इफ आई विल कंपेयर इक्वेशन नंबर 1, इट मींस इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जहां पे लिख लेता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, रो जी आई नॉट दिस इज इक्वल टू एफ। क्या था? एफ क्या है?
रो जी ए इंटू एच बार, यही है ना एफ का, अभी जो फार्मूला में ड्राफ्ट किया, इंटू एच डैश, राइट। सो रो भी कैंसल, जी भी कैंसल, रो भी कैंसल और जी भी कैंसल, राइट। सो देयरफॉर एच डैश, देयरफॉर एच डैश हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब this distance h dash from the free surface of the water, this distance, here the force is acting on the body, so h dash we have to calculate. So h dash, this is equal to I naught upon a h bar, right? I naught into a h bar. So why using the parallel axis theorem? Why using the पैरेलल एक्सिस थ्योरम? तो आपको अगर हम बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई नॉट इज इक्वल टू आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी प्लस area of the body into h dash square, right? This is the, by using the parallel axis theorem, its value is this one. So let us now substitute the value here. Therefore h naught is equal to, I naught की जगह मैं लिख सकता हूं I g plus a h bar square I g, right, upon a h bar, ये कैंसिल हो जाएगा सारा। So therefore इधर लिखेंगे, therefore h bar is equal to I g upon a h bar plus, नहीं इधर कैंसिल नहीं करूंगा, दिस इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग फॉर यू, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा। इधर से दोबारा करेंगे इसको। Therefore h naught h dash is I की क्या वैल्यू थी, I g plus a into h bar square upon a h bar, right? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I g a h bar plus a h bar square upon a h bar, a और a cancel, so therefore h dash means the distance of the center of pressure from the free surface of the liquid। तो इसका फार्मूला क्या आया, आप ऐसे लिख लो h bar plus IG upon AH bar, right? So this is the relation, this is very important relation, this is the center of pressure relation। अब देखिए इसमें मैंने जैसे आपको प्रेशर डायग्राम्स जो मैंने ड्रा की थी उसमें मैंने आपको एक चीज लिखा था कि इन केस ऑफ इन वर्टिकल प्लेन H dash greater than h bar, h dash in case of inclined plane greater than h bar, ये वर्टिकल में ये इंक्लाइन, यही लिखा था, राइट। अब देखिए h dash क्या है, h bar plus this terms, so it means
that h dash is always greater than the h bar. H bar means distance of the CG from the free surface of the water, right? So this is the pressure, center of pressure. ये आपका center of pressure, this is center of pressure. So this is very important formula. So मैंने ये separate किया है. मोस्टली क्या है कि इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और इंक्लाइन प्लेन का फोर्स निकालते हैं और उसके ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं. सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा आती है वहां पे. तो हम क्या करते हैं, मोस्टली में क्या करते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है, अगर वर्टिकल प्लेन होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. वो साइन इन टर्म्स ऑफ साइन जो फार्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ साइन फार्मूला होगा आपका. तो साइन 90 डिग्री लेके साइन 90 डिग्री फाइंड होता है तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे तो थीटा आपका 0 डिग्री है तो साइन थीटा 0 डिग्री होगा. तो अगर हम उसमें जो इक्वेशन हमें इंक्लाइन प्लेन की मिलेगी उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, राइट. बट ये मैंने सेपरेट आपको सेपरेट इसका कभी अगर आपको पूछे सेपरेट क्या वर्टिकल प्लेन का फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालिए तो उस वक्त आपको तो इंक्लाइन प्लेन नहीं लेना होगा. डायग्राम में तो आपको वर्टिकल प्लेन शो करना है. देन हाउ यू कैन टेक द इंक्लाइन प्लेन. ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद जो है आपको जो उसका डेरिवेशन होगा, जो उसका कंक्लूजन होगा, जो फार्मूला लास्ट में आएगा उसमें आप थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे.